could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just load an obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep on the scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep on the scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली पब्लिशर से मियाँ वहीद अहमद, और आज हम नारोवाल के शहर राजिया में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के बहुत ही फेमस हस्ती मियाँ असलम साहब, जिनके डेरे पे हम बैठे हैं। और आज उनका हमने आपको शौक़ भी करवाया और कुछ खूबसूरत और प्यारी प्यारी बातें करते हैं जी मियाँ साहब के साथ। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो हैं लाहौर की एक बड़ी ही माया नाज शख्सियत यूसुफ भाई भी हमारे साथ हैं जी। और आज हमारा बहुत ही प्यारा विज़िट और टूर रहा मियाँ साहब के डेरे पे, और यहाँ पे इन्होंने अपने नायाब नस्लें और लाजवाब कबूतर दिखाए, और इनके माशाल्लाह सुबह से बच्चे भी उड़े हुए थे और वो हमारे सामने अभी भी बैठे हैं और बैठ भी रहे हैं, साथ साथ वो भी आपको दिखाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है जी। मियाँ साहब, आपका किस दफ़ से ताल्लुक़ है और आप किस उस्ताद के शागिर्द हैं? जी, मेरा जो है ना इम्तियाज़ हिराबी नाम वाले सियालकोट, उनके मैं शागिर्द हूँ और उन्हीं की दफ़ से मेरा तल्लक है। मियाँ साहब, आपको कब से ये शौक़ है कबूतर परवरी का, और ये कबूतरों का शौक़ कब से है? ये देखें जी, ये शौक़ तो बचपन से ही है, लेकिन प्रॉपर जो है शौक़ मैंने तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे प्रॉपर शौक़ में। और लाहौर में पहले शौक़ था, उसके बाद अब इधर अपने गांव में मैंने छत बनाई है और अब यहाँ से ही शौक़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छा शौक़ होगा, यहाँ से उम्मीद है मुझे। मियाँ साहब, आपके पास माशाल्लाह हमने देखे बहुत तादाद में भी परिंदे हैं, और तकरीबन आपके परिंदों का फ़ज़ीक और स्ट्रक्चर एक ही तरह का है, और ये मादियाँ हमने देखी वो तकरीबन चाहे वो किसी भी ब्लड लाइन से हो, वो एक ही फ़ज़ीक और स्ट्रक्चर ऐसे देखे तो सबकी जो बेस है और जब का वो स्ट्रक्चर है वो एक ही जैसा है। कोई ख़ास वजह है कि आपने ये जो है सेलेक्ट खुद किए हैं हुए हैं, या ख़ुद आपने इनको मेंटेन किया है, या ये आपको जो है आपके उस्ताद की तरफ से या दोस्तों की तरफ से मिले हैं? देखें जी, इसमें सबसे ज़्यादा तो मुझे गाइड मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हीरा साहब ने किया हुआ है। उनकी वजह से ये सारे परिंदे हैं मेरे पास। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, उन्हीं पे अमल करते हुए आज ये परिंदे मैंने बनाए, और इनका माशाल्लाह भी रिज़ल्ट जो है ना पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है।
मियां साहब माशाल्लाह अमूमन ये होता ऐसे ही है कि जिस शौकीन से भी पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी मुझे बचपन से ही शौक़ है। तो आपको भी माशाल्लाह बचपन से शौक़ है। जो आप कोई अपनी ज़िंदगी की जो आपकी पहली बाजी उड़ी थी वो उसके मुतल्लिक थोड़ा सा बताएं कि वो किस हिसाब से उड़ी थी और आपने कहाँ से उड़ाई थी और आपने किस उस्ताद की जो है वो सरपरस्ती में उड़ाई थी या खुद ही उड़ाई थी? देखें जी, उस वक़्त मैं किसी का भी शागिर्द नहीं था, और जो मेरा पहला फ़र्स्ट शौक हुआ था 1 to 1, वो बड़े प्यारे शौक करने वाले मौजी शाह साहब सियालकोट से हैं। उन्होंने एक दफ़ा चैलेंज की पोस्ट लगाई थी, तो मैंने बस शुगली तौर पे उनके साथ शो कर लिया। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं वाहद बंदा हूँ जो लाहौर से मैंने उनके साथ शो किया था सियालकोट में, और अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ। फ़र्स्ट टाइम मेरा फ़र्स्ट शौक़ था 1 to 1 मुकाबलों का। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ मौजी शाह साहब का, उनकी पार्टी का, कि उन्होंने मेरा शौक़ करवाया उस वक़्त जब मुझे कोई भी नहीं जानता था। लेकिन उस शो के बाद तकरीबन काफ़ी सारे दोस्त मुझे जानने लग पड़े। अमूमन होता है कि इस शौक़ में जो देखा गया है कि लोग जो हैं लाहौर और सियालकोट और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, बातें भी होती हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं कि लाहौर का एटमॉस्फेयर और दूसरे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत फ़र्क है, जिसकी वजह से ये है कि अगर हम इंटरनेशनली जब देखते हैं तो लाहौर में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, लाहौर टॉपेस्ट जो होता है वो सबसे। तो इसके बावजूद आपने ये शौक़ किया, ये बैसाख का शौक़ था या जेठ का शौक़ था? देखिए जी, ये अस्सू का शौक़ था। तो मौसम का तो फैक्ट है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है। इधर हमारे इधर मौसम काफ़ी बेहतर होता है लाहौर की निस्बत। लाहौर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गर्दोबार ये वो, उस वजह से थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन ये शौक़ होता है बेसिकल दलेरी का। जो दलेरी करता है, जो दलेर आदमी होता है, वही जीतता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी मौसम जो है बुरा है। पाकिस्तान के मौसम है सारे, हर मौसम में कबूतर इंसान को उड़ाने चाहिए, और उस्ताद मोहतरम उस्ताद उड़ा भी रहे हैं। और मैंने एक कोशिश की थी, मेरी ख्वाहिश भी थी कि मेरे किसी बड़े उस्ताद के साथ शौक़ हो, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरा शौक़ करवाया और अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। इस शौक़ के मुतल्लिक जो पहला शौक़ हुआ है तो उसके मुतल्लिक एक सुनने में बात आती है कि जब आपका ये शौक़ हो गया तो एक दफ़ा आपने सोचा, लोगों ने जब आपने लोगों को बताया कि मेरा पीर मौजी शाह साहब से शौक़ हो गया है, तो उन्होंने आपको मशवरा भी दिया था कि आप तो समझ लें कि पहले ही उनको मिठाई विठाई खिला दें तो बेहतर है कि इज़्ज़त बचा लें। तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? बिल्कुल, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे यही मशवरा दिया था कि आपने कहाँ पे शौक़ कर लिया, आप उनको मिठाई भेज दें, मुबारकबाद दे दें। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं फ़ाइट करूँगा, फ़ाइट पे यकीन रखता हूँ। और मैंने उड़ा के दिखाए, और अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। ये देखें, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त देनी होती है, इंसान के पास में कुछ भी नहीं है। मैंने कोशिश की, मेरे बहुत अच्छे उड़ गए, और उन्होंने भी कोशिश की, ये नहीं कि उन्होंने नहीं कोशिश की, उनके नहीं उड़े। एक बंदे ने हारना और एक ने जीतना होता है। अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं इस जो ये शौक़ था मेरा, और बाकी ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब शौक़ हो रहा था उनके साथ, तो शौक़ जब डन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने ना आपकी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मैं तो पहले शुक्र मजाक में लगा हुआ था, मैंने कहा यार चलो इन्होंने चैलेंज किया, इनको मैं छेड़ता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने जब उन्होंने कहा ना कि मैंने आपकी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, तो फिर मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। और कोई चारा नहीं था सिवाय फ़ाइट के। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर से फ़ाइट की, उनके साथ कबूतर उड़ाए। कबूतरों ने फ़ाइट की, मैंने क्या करनी थी ना। उस वक़्त मैं किसी का शागिर्द भी नहीं था, लेकिन मुझे दाना पानी अच्छा मिल गया, कुछ दोस्त अच्छे थे, उन्होंने मुझे गाइड अच्छा किया, और मेरे कबूतर बहुत अच्छे उड़े। सुना है दूसरी या तीसरी बाजी के बाद आपके घर के बाहर मजमा लग गया था, जिनको आप भी नहीं जानते थे। उन लोगों के मुतल्लिक थोड़ा बताना पसंद करेंगे कि वो लोग कौन थे? देखें जी, जहाँ पे हम रहते हैं कनाल व्यू में लाहौर, तो वहाँ सोसाइटी या टाउन जो होते हैं ना, वहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता। अगर गली में कोई नया बंदा आता तो लोग देख के परेशान हो जाते हैं कि ये कौन बंदे हैं। तो उधर मेरी की छाता तकरीबन कनाल व्यू में लाहौर में। तो जब वो 10-12 लोग नीचे आके खड़े हो गए, तो फिर वो बड़ा एक अजीब सा मंजर था कि
आप उन लोगों को जानते थे? नहीं, मैं किसी को भी नहीं जानता था। वो पता नहीं किसने भेजे थे, किसने नहीं भेजे थे, वो इसका तो अल्लाह को इल्म है। लेकिन वो कह रहे थे कि हम शो करने के लिए आए हुए हैं। बड़ा अच्छा शौक हुआ था उनके साथ और बड़ा मज़ा भी आया था शौक का। अच्छा, उसके बाद मैंने सुना है कि जब आप प्रॉपर शागिर्द कब हुए? मैं 2017 और 18 में तकरीबन शागिर्द हुआ हूँ। इम्तियाज़ साहब का बहुत बड़ा नाम है उनका जी। ये उनकी अच्छा, मैं अभी आपके गांव में जब यहाँ पे राजिया में आया तो मुझे लोगों से मालूम हुआ कि वो जो आप शागिर्द हुए थे, कुछ उसका समा कुछ ऐसा था कि सुना है काफ़ी अरसे तक जो है वो लोग आपके घरों पे जो हैं वो अमूमन जिस तरह गांव में देहातों में रवाज होता है कि वो वेले लेने के लिए आते हैं, यानी कि जो बारात में जिस तरह वेले, तो वो वाक़या भी थोड़ा सा हमें शेयर करें कि वो क्या वाक़या है। बड़ा दिलचस्प वाक़या मैंने लोगों की ज़बानी सुना है, आपकी ज़बानी सुनते हैं। देखिए जी, इस तरह के प्रोग्राम जो कबूतर परवरी के हमारे इलाके में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं बहुत कम होते हैं। और जो हमने प्रोग्राम किया था माशाल्लाह काफ़ी अच्छा किया था, काफ़ी बड़ा किया था। और लोग समझ रहे थे कि किसी की शादी है, किसी की शादी हो रही है, इतना बड़ा था। और लोग जिस तरह अमूमन ये सलामियाँ वगैरह चंगड़ वगैरह लेने के लिए आ जाते हैं कि मांगने के लिए कि यहाँ पे कोई कल शादी हुई है परसों, इसी तरह उस प्रोग्राम के बाद मुझे बड़ी हंसी आती है कि लोग एक हफ्ते तक लोग सलामियाँ लेने के लिए आते रहे हैं। जो ये जो मांगने वाले होते हैं ना कि यहाँ पे कोई शादी का माहौल बना हुआ सब था। वो शादी का माहौल और वो इस्लामियों का माहौल, उसके लिए तो कोई बैंड बाजे होते हैं, तो फिर ही समझ आती है कि क्या कि उसकी क्या वजह, कोई बैंड बाजों वाला माहौल था? बैंड बाजों वाला माहौल था, बिल्कुल बड़ा डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम था। जब मैं शागिर्द हुआ तो उस वजह से फिर लोग यही सोच रहे थे, पता नहीं। सुना है कि मैंने बग्गी पे आपने अपने उस्ताजा का इस्तकबाल किया था। देखो जी, उस वक्त तो हमें बग्गी मिली थी, अगर हेलीकॉप्टर भी मिलता तो हम अपने उस्ताद मोहतरम के लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आते। और आज उन्हीं की वजह से हम जो भी हैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन्हीं की रहनुमाई में हम शो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी उन्हीं की रहनुमाई में हम शो करेंगे। वो हमारे बड़े हैं, उनकी तो हम खिदमत जितनी कर सकें वो कम है। वो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, हमारे बड़ों की जगह पे हैं। जो लोग अपने उस्तादों की इज़्ज़त नहीं करते वो कभी भी बड़ा प्लेयर नहीं बन सकते और ना ही वो कभी जीत सकता है। जिसने जीतना है वो सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। और जितने भी उस्ताद हैं सभी की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो ना आपको सुकून शौक़ में है, ना ही आपकी ज़िंदगी में सुकून है। जी बिल्कुल, अपना मियाँ साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक आप अपने उस्तादों की इज़्ज़त और दूसरे उस्तादों का एहतराम नहीं करेंगे उतनी देर तक आपकी भी इज़्ज़त और आपका भी लोग एहतराम नहीं करेंगे। अमूमन देखा गया है इस शौक़ में कि बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। शौक़ को शौक़ की हद तक रहना चाहिए और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ही डील करना चाहिए। और इसमें बाज़ दफ़ा लोग ज़ाती अना का मसला बना लेते हैं, तो इस किस्म का चीज़ें जो होती हैं वो इस शौक़ के हुस्न को ख़राब करती हैं। मियाँ साहब, मैंने अपना एक दफ़ा सुना है कि एक बाज़ी आपकी ऐसी भी थी जिसमें आपने मिठाई तकसीम कर दी और जो है वो खुशी का जश्न भी मना लिया, वो वाक़या क्या है? देखिए जी, वो भी बड़ा इंटरेस्टेड वाक़या है। हम जीत चुके थे, तकरीबन कप में भी हमारी पहली पोजीशन थी और जिसके साथ बाजी थी उस वक्त उससे भी हमारी पोजीशन थी, वाज़िया थी पोजीशन, क्योंकि उसके कबूतर बैठ गए हुए थे। हमने एवरेज निकाली तो मैं जीत रहा था, कबूतर भी सामने था। नीचे से दोस्तों ने मिठाई वगैरह तकसीम कर दी, सब कुछ ये वो जश्न हो गया। तो जब कबूतर नीचे आया तो उसको लकड़ उठा के ले गया। वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, वो मुझे कभी भी नहीं भूलता कि मैं जब उसको देखता हूँ मुझे याद आता तो मैं कहता हूँ यार क्या हो गया। यानी कि सारा जो जीत भी सेलिब्रेट कर ली, तो इसमें एक किरदार लखर और बैरी का भी है, तो उसने अपना किरदार अदा किया, उसने अपना रोल अदा किया। उसने कहा कि इन्होंने कर लिया क्या अपनी पार्टी। वो ये देख तो नहीं रहा था कि ये मिठाई खा ले तो मैं आऊँ? नहीं, उन्होंने उस लगन ने देख लिया होगा ना, इन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर ली, ख़त्म कर लिया, मैं अपनी पार्टी करता हूँ। उसने अपनी पार्टी करनी थी, वो कबूतर को उठा के ले गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, इधर ना हमारे लगड़ बैडी जो है ना बहुत ज़्यादा है। ये साथ जो ना जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है ना, इनके पहाड़ों से लगड़ आते हैं आजकल के मौसम में। अभी चेतर चल रहा है ना, अब हज़ारों की तादाद में आते हैं। पहले सैकड़ों की तादाद में थे, लेकिन अब हज़ारों की तादाद में। अब ऊपर देखें ना तो आपको लगड़ ही नज़र आते हैं। कबूतर
गायब हो जाते हैं, इस तरह का भी माहौल हो जाता है। जी हमारे साथ यूसुफ भाई मौजूद हैं, तो अभी वो उस बच्चे का शौक़ कर रहे हैं जो अभी बैठा है, और हम भी उस बच्चे का शौक़ करते हैं जी। ये अभी 3 से 4 दिन हुए हैं इनको खोले हुए, ये इनकी मुश्किल दूसरी और तीसरी फड़क है, और ये बच्चा माशाल्लाह इनका कल भी माशाल्लाह शाम को बैठा था। ये कल भी बैठा था जी, और आज भी बैठा है। और इसकी माँ, अभी हमने शौक भी किया था, स्लेटी जो इसकी माँ थी, और एक मियाँ साहब के घर का ही कबूतर था जिसको उन्होंने अपने घर की ब्रीड बताया, ये उसका बच्चा है जी। और ये अभी हमारे सामने बैठा है, और कल भी ये इसी वक्त बैठा था और जी। ये 2 कली का बच्चा है माशाल्लाह, और 2 कली का बच्चा है जी। और अभी भी नहीं पकड़ा जा रहा, ये माशाल्लाह इतना एक्टिव है ये। और ये सुबह फिर उड़ेगा, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर भी इसी टाइम बैठेगा। आपके सामने किस तरह ये उड़ रहा था अंधेरे में भी माशाल्लाह। बिल्कुल जी, बिल्कुल अंधेरे में उड़ा था, और मेरा ख्याल है कि इसको आपने कभी अंधेरे में छोड़ा भी नहीं होगा। नहीं नहीं, इसमें कुदरती सलाहियत है अंधेरे में उड़ने की, हमने एक दफ़ा भी इसको नहीं लगाया या ये वो, इसमें कुदरती सलाहियत है। कुछ कबूतरों में होती है गॉड गिफ्ट, अल्लाह ने उनको इतनी सलाहियत दी होती है कि वो अंधेरे में बैठ जाते हैं। जी हम इस बच्चे का शौक़ करते हैं, और हमारे साथ यूसुफ भाई मौजूद हैं, और उनसे भी तासुरात लेते हैं कि आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और लाहौर की माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। और उनसे भी हम गुफ्तगू करते हुए पूछते हैं कि उनको मियाँ साहब का कैसा जो है वो शौक़ लगा। ये अपना यूसुफ भाई ये पकड़िएगा, और इससे पहले हम एक बच्चे का इस शौक़ करवाएं जी सर। ये वो बच्चा है जो माशाल्लाह कल भी बैठा था, और मियाँ साहब का कहना है कि इंशाल्लाह आज भी बैठा है, और ये इंशाल्लाह कल नेक्स्ट डे भी बैठेगा इंशाल्लाह। और ये इनके घर का मियाँ साहब का बच्चा है जी, 2 कली का बच्चा, 2 कली का बच्चा है। इस पे कैमरा लगा और जो है अपना इसको हमने इसका माँ का भी शौक़ किया, और इसके बाप का भी माशाल्लाह शौक़ किया। और तकरीबन जो यहाँ पे शौक़ होता है वो मियाँ साहब थे, तो ये मियाँ साहब की मोहब्बत है कि इन्होंने यूसुफ भाई को ये 2 बच्चे दिए हैं, और इन्हें कहा कि आपने इनको भी पाकिस्तान के शहर में उड़ा के इसका रिज़ल्ट मुझे बताना है। जी यूसुफ भाई, आपको मियाँ साहब का शौक़ कैसा लगा? आप ख़ुद भी माशाल्लाह एक बहुत अच्छे शौकीन भी हैं, और किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं। और यूसुफ साहब के मुतालिक थोड़ा सा बता दें कि यूसुफ साहब जो हैं वो एशिया टाइगर मुल्ला तारा वालों के शागिर्द हैं जी। तो अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। और यूसुफ भाई, आपको मियाँ साहब का कैसा शौक़ लगा जी? माशाल्लाह, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम है सभी दोस्तों को, भाइयों को जो देख रहे हैं। तो जी माशाल्लाह आज मियाँ साहब ने पुरतकल्लफ़ दावत की, उसके बाद सारा दिन हमें दिया, और अपना बड़ा ख़ास टाइम निकाल कर अपने डेरे पर लाकर शौक़ करवाया। और आज का जो शौक़ है ये मुझे इंशाल्लाह रही ज़िंदगी भूलेगा नहीं। ये ऐसा शौक़ करवाया इन्होंने। इनके कबूतर देख रहे हैं तो कबूतरों के एक ही तरह के बॉडी स्ट्रक्चर आ रहे हैं, मादियाँ देख रहे हैं उनमें एक स्ट्रक्चर आ रहा है। बच्चों में मैंने देखा है कि बच्चों में सिर्फ परों की शेप तो इन्होंने चेंज की है। ये इनकी ऐसी कबूतर परवरी की एक ऐसी गेम रही है कि इन्होंने अपने परिंदों में ये क्वालिटी पक्की की है कि अगर ये 100 परिंदा इन्होंने छोड़ा है ना, 100 में से इनका 90 परिंदा इनकी छत पे पक्का हुआ है। 10 वो भी किसी बाज वगैरह की वजह से साइड पे गिर गया तो गिर गया, वरना मैंने इनके परिंदे की आज सारा दिन बैठे हुए फिरते वगैरह देखते रहे, बच्चे ये उड़ा रहे हैं माशाल्लाह। तो बड़ा मज़ा आया, आज का शौक़ किया। तो माशाल्लाह मियाँ साहब ने मुझे कुछ परिंदे गिफ्ट भी किए हैं। ये इनकी मोहब्बत है कि आप अपनी छत पर छोड़ें उड़ान के लिए, तो ये इनकी ख़ास शफ़क़त है, हमारे लिए प्यार है। तो हम इनका ये प्यार किसी भी तरीके से उतार नहीं सकते। तो ये इनका बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। यूसुफ भाई, इस शौक़ के मुतल्लिक जो शौकीन हजरात हैं, कुछ नए शौकीन हजरात हैं, कुछ पुराने शौकीन हजरात हैं, दोनों के लिए कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं उन दोस्तों के लिए एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि वो इस कबूतर परवरी को अच्छाई की तरफ लेकर जाएं, ना कि इसे पुराने तरीके से चलाएं। जैसे किसी का कबूतर पकड़ लिया तो वो हम दे नहीं रहे, उस पर चिट लगी हुई है। किसी का शौक़ वाला परिंदा आपके पास आया तो आपसे गुजारिश है कि आप उसका परिंदा पकड़ा हुआ, उस पर नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर रब्ता करके उन्हें वो नंबर पे कॉल कर कर आप परिंदा दें, ताकि उनका शौक़ ख़राब ना हो।
पूरे साल की मेहनत होती है उस बंदे की, जिसका वो कबूतर आपके पास एक अमानती तौर पर आता है। जब तक उस पर नंबर लगा हुआ है ये अमानती तौर पर है। तो आप अपने आसपास पड़ोसियों का भी कबूतर अगर आपके पास आता है तो आप उसे दिया करें। हमारी ख्वाहिश ये है, मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि किसी भी भाई का कबूतर कोई साथ वाला छत वाला पकड़ लेता है, वो कबूतर नहीं देता, प्लीज़ उससे गुजारिश है कि वो इस शौक़ को अच्छे तरीके से लाए, ताकि इस शौक़ की अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ चुकी है। इसने अपनी जड़ें पाकिस्तान में ऐसे बना ली हैं कि हर बंदा लाहौरी कबूतर के पीछे भागा हुआ है, लाहौरी कबूतर के पीछे भागा है। इसी तरह वो कबूतर परवरी के लोगों के पीछे भी लोग भागें कि यार कबूतर परवर से प्यार करना है, कोई एक दूसरे का कबूतर पकड़ के ना रखे, उसे कबूतर लुटाए। मैं ये छोटा सा मैसेज दे सकता था। बहुत अच्छा मैसेज भाई ने दिया और मैं समझता हूँ होना भी इसी तरह चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं दे सकते तो प्लीज़ कम से कम उससे इतने पैसे मांगे कि जितने वो दे सके। ऊपर से ये पैसे इतने मांग लेते हैं 10,000, 8,000, 10,000, ये कोई इंसानियत नहीं है। एक तो आपने उसका कबूतर पकड़ा है, ऊपर से आप उससे इतने पैसे मांग रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप चिड़ी मारी ना करें, आप कबूतर ना पकड़ें, लेकिन कम से कम कोई ख्याल किया करें शौकीन हज़रात का। जी बिल्कुल मियां साहब, ये एक शौक़ एक दूसरे से ही जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे दोस्तों का और बहुत सारे लोगों का आपस में ताल्लुक़ भी इसी वजह से है। और इस शौक़ में मैंने अमूमन देखा है कि लोग अपनी फैमिली को इतना टाइम नहीं देते जितना इस शौक़ में अपने दोस्तों को टाइम देते हैं। मियां साहब, इस मर्तबा आप माशाल्लाह राजियां कस्बा में, गांव में इस शौक़ को हमेशा आपने प्रमोट किया है, तो इस मर्तबा जो है इस शौक़ को प्रमोट करने के लिए, इस शौक़ की प्रमोशन के लिए आप ख़ुसूसन बेल्जियम से यहाँ पे तशरीफ़ लेके आते हैं। तो इस दफ़ा सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि चेतर में आप कोई कप को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं या उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी तफसील बताइए। देखिए जी, मैं तकरीबन 2019 में सदर बना था ज़िला नारोवाल का, तो 2019 में भी काफ़ी अच्छा शो करवाया था। फर्स्ट टाइम हमने थोड़ा आगे कार कप उड़ाया था। मैंने कहा था कि अगर 2 छतें भी होगी तो हम कार देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी छतें हुई सभी दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया और हमने पहली दफ़ा ज़िला नारोवाल में नाम में जो है ना वो कार दी। उसके बाद 2021 में 20 में भी इसी तरह था, 21 में भी इसी तरह था। काफ़ी सारे नामात और काफ़ी सारी छतें उड़ी। चेतर में जो कप उड़ रहा है उसकी कुछ डिटेल बताएंगे आप? जी, चेतर में माशाल्लाह मेरी ज़ेर सदारत 3 रोज़ा कप उड़ रहा है पंजाब डेट के ऊपर। पंजाब कवानीन के मुताबिक 23, 25 और 27 मार्च को। उसमें इनामात की तफसील कुछ बताएं। उसमें देखें जी, हमने 10,000 रुपये एंट्री रखी है और जो भी दोस्त 3 दिन का 200 घंटा बनाएगा उसको मैं अपनी तरफ से मोटरसाइकिल नाम दूंगा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इस शौक़ की प्रमोशन के लिए जो है वो, क्योंकि मियां असलम साहब जो हैं वो सदर हैं इस एसोसिएशन, पिजन एसोसिएशन के, और उन्होंने 200 घंटा बनाने के लिए 3 दिन के ऊपर एक मोटर बाइक का ऐलान रखा है। तो बैसाख में जो कप उड़ रहा है उसकी कुछ तफसील बताएंगे मियां साहब, लोगों से शेयर करेंगे कि इस इलाके में जो है इस शौक़ की प्रमोशन के लिए आप किस तरह स्पॉन्सर कर रहे हैं और क्या इनामात रखे हैं? देखें जी, बैसाख में 3 रोज़ा कप उड़ रहा है जिसमें अब सब दोस्त मिलकर 3 मोटरसाइकिल अपनी तरफ से दे रहे हैं और इसके अलावा जो एंट्री फ़ीस जितनी होगी उतने इनामात देंगे। जितने प्रोग्राम के खर्चे होते हैं कप वगैरह के, ट्रॉफियों वगैरह के, वो सब दोस्त मिलकर अपनी तरफ से करते हैं। और इसमें है कि 3 मोटरसाइकिल हम अपनी तरफ से देंगे, रोज़ाना का बेस्ट एवरेज का मोटरसाइकिल इंशाल्लाह। और मेरे साथ जो जेठ में कप उड़ा है उसकी कुछ डिटेल बताएंगे और उसमें इनामात की तफसील क्या है? देखें जी, जेठ में हमारे 2 कप उड़ रहे हैं, एक 25,000 वाला और एक 50,000 वाला। 7 रोज़ा कप हैं ये दोनों, और इसमें दोनों कपों में हम सब दोस्तों ने मिलकर 7 मोटरसाइकिल देंगे हम इंशाल्लाह। यानी कि जितने दिन परवाजें और उतने ही
मोटर बाइक इनामात की, इसका मतलब है बरसात कर दी है। और इस दफ़ा तो मियाँ साहब लगता है आपने जो राजियाँ है और जो नारोवाल है उसमें इनामों का नीलाम घर शुरू कर दिया। बिल्कुल जी, देखो इस तरह के इनामात पहले कभी भी नहीं किसी ने दिए। 2020 में भी इसी तरह हमारे इनामात थे, 21 में भी इसी तरह थे, और 2022 में माशाल्लाह इंतज़ामिया जो अपनी तरफ से 17 मोटरसाइकिल दे रही है। एंट्री फ़ीस के अलावा जो प्रोग्राम के खर्चा वो ट्रॉफियों के खर्चे हैं, ये भी इंतज़ामिया खुद उठाती है। कभी भी किसी में से कटौती नहीं की। ये वाहद टूर्नामेंट है जो मेरी सरपरस्ती में होते हैं, जिसमें कभी कोई कटौती नहीं हुई आज तक। और मियाँ साहब इसमें जो इनामात हैं, तकसीम इनामात होती है, वो कितनी देर बाद होती है, उसके कुछ हमें बताएं, क्योंकि अक्सर जो टूर्नामेंट्स मुख्तलिफ पाकिस्तान में उड़ते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है। आपका जो तकसीम इनामात है उसका क्या तरीक़ेकार होता है? देखिए, जो हमारे तकसीम इनामात हैं, एक वीक के अंदर अंदर हमने इनामात, ट्रॉफियाँ वगैरह सब कुछ दोस्तों को दे देते हैं। इससे ऊपर कभी भी एक दिन भी हम ऊपर नहीं गए। चाहे वनडे हो, वनडे के इनामात हम उसी दिन दे देते हैं, अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन। तो ये जो कप होते हैं बड़े, इनके एक वीक के अंदर अंदर हमने प्रोग्राम करवाना होता है, और सारे इनामात, ट्रॉफियाँ वगैरह जो भी जितने भी हैं दोस्तों को दे देते हैं। जी माशाल्लाह जी, ये लाहौर की तारीख़ में या पाकिस्तान की तारीख़ में जिस तरह बाकी शहरों में उड़ते हैं, सियालकोट में कप उड़ते हैं, लाहौर में उड़ते हैं, फैसलाबाद में उड़ते हैं, तो माशाल्लाह ये एक मियाँ साहब ने एग्जांपल सेट की है उन कप इंतज़ामिया मुंतज़मीन के लिए कि जब लोग इनाम जीत जाते हैं तो बाज़ लोग और या बाज़ कप ऐसे होते हैं जिनको सालों साल जो है वो इनामात ही नहीं मिलते। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि तकसीम इनामात बाज़ दफ़ा तो सेम डेट में हो जाती है और बाज़ दफ़ा जो है वो एक वीक के अंदर जो डक बाय डक के होती है। तो मियाँ साहब, आप जितने भी शौकीन हजरात हैं, जो उस्ताज़ हजरात हैं, जो शागिर्द हजरात हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, मैं उन सभी दोस्तों को यही कहूँगा कि साफ़ सुथरा अच्छा शो करें। अगर आप अच्छा शो करेंगे तो आपके उस्ताद की पहचान अच्छी होगी। अगर आप बुरा शो करेंगे, आपके उस्ताद को भी लोग बुरा कहेंगे, आपको भी कहेंगे। इसलिए मेरा सभी कबूतर परवर हजरात से पुरज़ोर अपील भी और मुतालबा भी है कि यार शो को है ना साफ़ सुथरा करें, प्यार मोहब्बत इसमें रहने दें। ये लड़ाई झगड़े, ये छतों की कबूतरबाजी ख़त्म कर दें और प्यार मोहब्बत और दिल से कबूतरबाजी ऐसी करेंगे जिससे कोई देखने वाला भी कहे कि यार ये अच्छे लोग हैं। ये ना हो कि हम कबूतर उड़ाए हों, नीचे से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ये बिल्कुल बुरी बात है। इस तरह का शौक़ होना चाहिए कि जब हम अपने हरीफ से भी मिलें तो किसी को ये ना लगे कि ये हरीफ हैं, ये लगे कि ये दोस्त हैं और भाई। जी, बहुत ही अच्छा मैसेज, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस शौक़ से वाबस्ता हैं। और ये एक स्पोर्ट्स है, और हर दोस्त से बाप को जो किसी भी दफ़ से ताल्लुक़ रखता हो उसको हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहरा करना चाहिए। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही जो है वो बाइसे उनके उस्ताज़ा के लिए और एक दूसरे का एहतराम जो है, ये उस्ताज़ा इकराम की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शागिर्दों को ऐसा अखलाकी तौर पे भी ऐसी तरबियत करें कि वो एक दूसरे के उस्ताज़ा का एहतराम करें, जिससे ना सिर्फ़ ये शौक़ की बेहतरी है बल्कि इस शौक़ से अब जिस तरह पढ़े लिखे लोग और जिस तरह माशाल्लाह ये शौक़ पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इस शौक़ की बेहतरी के लिए अखलाकी तौर पे भी हमारा बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और यही इस शौक़ की असल पहचान है, क्योंकि ये मोहब्बत वाला शौक़ है और ये इसी सूरत में कायम रह सकता है कि जब हम चाहे जीतें चाहे हारे, हम एक दूसरे को इज़्ज़त दें। इसके साथ ही मियाँ वहीद अहमद को डेली पब्लिक से इजाज़त दीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी अपना पंजाब के शहरों से, दूसरे शहरों से हम आपको इसी तरह अच्छे लोगों से और अच्छे शौकीन हजरात का शौक़ करवाते रहेंगे। और इसके साथ साथ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और उसके साथ दूसरे वीडियोज़ और दूसरे तबसरे सुनने के लिए हमारे चैनल से वाबस्ता रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह जी, साड़ी होम ब्रीड है जी। यस जी, चौधरी साहब, ये आपके होम ब्रीड है जी माशाल्लाह। ये आपने तैयार किया है।
ये गोल्डन है, उनमें से निकला हुआ कबूतर। इसका कुंदा देखे माशाल्लाह वेरी गुड। पहले धागे का है अभी। अच्छा जी, पहले धागे। पहले धागे का फर्स्ट टाइम इसने ब्रीडिंग की है। ठीक है। ये नामी ग्रामी कोई एक भी ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਆਸਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬੋਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਬੋਸ ਨੇ ਦੁੰਬਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੰਬਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਲੋ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਐਸੇ ਹੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਡਰ ਵਾਲਾ ਪਿਓਰ ਆ ਚੀਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 12 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਟੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਐਪ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਥੱਲੇ ਝੋਲੇ ਦੀਆਂ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों माशाल्लाह जी एक और मेरी बड़ी फेवरेट ब्रीड रामपुरी उन्होंने दोस्तों का शो करवा रहा था शो करवा था ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਪਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿਓਰ ਰਾਮਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ एक और कबूतर का शो करवाने दोस्तों ए फड़ो जी कैमरा आगे ए माशाल्लाह जी एक और प्योर रामपुरी कबूतर है ए उदा पट्ठा है वो बड़ा कबूतर है ए उदा पट्ठा है ए दा पर है माशाल्लाह जी पर देखो दा कलर देखो माशाल्लाह ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਕਲਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦਾ ਪਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਆਇਆ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੂਹੇ ਜੀ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और मोतियां वाले चूहे अख दिखाओ जी फुल अख दिखाओ जी माशाल्लाह ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਬੰਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਢੇਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਦੀ ਦੁੰਬ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਬੰਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਤਰ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀਰਾ ਪੀਣਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ
ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਿਫਟ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਅਭੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਖ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਦਾ ਪਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲ ਟੇਲ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਤਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ